में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, और ये पिछले कई सालों से चल रही हैं, 20 साल से चल रही हैं। बेसिक पर्पस इन कैंप का ये होता है कि हम अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकें किसी भी तबके की, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को उनकी आगे बढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत हो, वो अगर हम पूरा कर सकते हैं तो ये ओएनजीसी का एक सोसाइटी के तरफ एक छोटा सा योगदान होता है। और वही आज इस कैंप के थ्रू किया जा रहा है, जहाँ पे फ्री आई चेकिंग भी होगा और कुछ बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, जैसा कि आपने देखा अभी। तो ये गतिविधियाँ चलती रही हैं और आगे चलती रहेंगी, और इसमें हम जितना सहयोग एज ए ओएनजीसीएन कर सकते हैं वो हम पूरा सहयोग करेंगे। मैंने जैसा कहा कि मैं तो यहाँ आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस पावन भूमि पे कदम रखने का सौभाग्य मिला, और इसके लिए मैं यहाँ अपनी उपस्थिति का पूरा श्रेय जागेश जी को देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे रोपिन किया और इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज के इस मेडिकल कैंप के थ्रू और इस दिवस पे धम्म चक्र परिवर्तन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ओएनजीसी हमेशा सोसाइटी के डेवलपमेंट में सहयोग करती रही है। ये मेडिकल कैंप और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप उस तरफ एक छोटा सा संकेत है। ओएनजीसी हमेशा आगे भी समाज के उत्थान के लिए कार्यरत रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। Thank you. And today's program, this is a free multi-purpose medical camp for an inaugural purpose. The dignitary and dais, most respected and our beloved CMD Sri Srivastava sir, chief guest of this inaugural function. Respected Sri Pankaj Kumar sir, Director Offshore, guest of honor, other dignitaries, Sir Vijay Raj Garu and ED HRO Mumbai, Madam Shashprasad ji, GGM HR, Chief STS and our CLO for SAST, and Ashish Jain ji, our Tandon ji, our CWC President Sri JJ Parmar ji, our Additional General Secretary Sri Rohit Patel ji, and other dignitaries, office bearers of Mumbai branch, and the persons who has made today's program as a successful to all, to JB. My dear brothers, and I am in the association since 28 years. When I was at Hazira and Rajahmundry, now I am at Agartala. But I never got the opportunity to attend this program at Diksha Bhumi. Earlier I have attended the programs at Chaitanya Bhumi, but this is the first time. But for this, I am very much thankful to Mumbai branch, especially my friend Jagesh Kumar, who is also chairman of this Mumbai branch, and also work. And in our Indian society, we all know that free dan gives more importance and gives value. One is another, like distribution of bhojan, and second one is vidya dan, like education, and third one is vaidya dan, that means like extending the medical aid to the people. These three is having the value in our Indian society. And especially we must convey our sincere thanks to our ONGC management, and who are extending their full support to organizing such type of camps, not only here, but all hospitals of total India. And everywhere our association takes to each corner of India, the ONGC is doing such type of
welfare activities which is benefiting to everyone. क्योंकि नेक्स्ट हमारा CWC से प्रेसिडेंट परमार जी भी कुछ ऐड करेगा. बट जब उनका मैं देखता हूँ व्हाई ही वेयर्स ब्लू कोट, white shirt and red tie, and when I gone through the internet, so what is the reason for this portrait wearing this like this blue coat, white shirt and red color tie? But the red is indicates that is dynamism. You know how Ambedkar ji, we will call him as a Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar ji, how much damage he is having. White indicates the purity, and whereas blue indicates that is his wisdom and his visioning. So I felt very happy. I am very much having the feelings that he is having such type of vision. And when I reached here, this Diksha Bhumi, I am having different type of feelings. After a long time, I have visited this Diksha Bhumi, and it is giving a lot of pleasure. And once again, I am very much thankful to Mumbai branch and also my friend Jagdish Kumar ji for inviting me to attend this program. Thanks a lot, my friend Prasad ji. Now I request our CWC President, Mr. J.J. Parmar ji, to speak few words on this occasion. नमस्कार. जय भीम. जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन. ONGC मुंबई के द्वारा आयोजित दीक्षा भूमि नागपुर पे फ्री मेडिकल कैंप, उसके लिए सबसे पहले मैं ONGC मुंबई को बधाई देता हूँ और हमारे परम आदरणीय सम्मानीय चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव साहब. आई थिंक जब से मैंने जाना है तब तक यहाँ पहले ही CMD यहाँ तक विजिट हुआ है सर, और जो भी फंक्शन देखा उसका ये आज यहाँ का ये नंबर 1 फंक्शन ONGC से ऑर्गेनाइज हुआ है. इतना बड़ा पंडाल देता है, इसे टीम मुंबई को और भी बधाई देता हूँ. हमारे परम आदरणीय एवं लाडले ऐसे पंकज कुमार साहब, डायरेक्टर ऑफशोर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, और हम आपको अहमदाबाद में मिस कर रहे हैं सर. आज बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, बड़े दिनों से मैं RK श्रीवास्तव साहब को, पंकज कुमार साहब को मिलना चाहता था, मिल पाया, और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दिखाई. ये बहुत मेमोरेबल क्षण है सर आपने, और मुझे जो ये दीक्षा भूमि नागपुर आज बहुत ही सक्सेसफुल लगा. जब फ्री मेडिकल कैंप की जो बात है, आज़ादी के बाद जब 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत देश को लगा हुआ बहुत बड़ा महारोग था, जिसकी दवाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस दीक्षा भूमि नागपुर में धम्म दीक्षा लेके धर्म परिवर्तन करके इस अनटचेबिलिटी को दूर करने का जो सुंदर प्रयास किया, और उसी की वजह से आज ये बढ़ता जाता है और देश में से ये रोग नाबूद होता जा रहा है. और इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में ये जो मेडिकल कैंप बहुत ही अच्छा लगता है. हमारे परम आदरणीय विजयराज साहब, इडी जे बेचारो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. CLO मैम शशि प्रसाद मैम भी पहली बार यहाँ पधारे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ आए, और ये दीक्षा भूमि देखने लायक भी है नज़ारा. रात को, आज रात को यहाँ बहुत बड़ा नज़ारा रहेगा सर, देखने लायक है. आशीष जैन साहब, टंडन साहब, हमारे महामंत्री श्री बी प्रसाद राव, जो 28 ईयर्स एसोसिएशन में निकालने के बाद पहली बार आए, श्री रोहित पटेल. यार हमारी वेस्टर्न रीजन टीम तो यहाँ विजिट लेती रहती है सर, हम लोग आते रहते हैं. बाकी हमारे यहाँ उपस्थित सारे ऑफिस बेरर एवं मुंबई ब्रांच के सारे ही ऑफिस बेरर, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आयोजन किया है, और हम चाहेंगे कि
आगे जब कैंप हो तब CWC भी इसके साथ जुड़ जाए और एक और भी बढ़िया हम लोग प्रोग्राम करें सर। जो ये बेहतरीन यहाँ पर इतने 4000 to 5000 सर पंडाल है पूरे एरिया में और सारे लोग कुछ ना कुछ सेवाएं देते हैं। ये नज़ारा हमें कहीं भी किसी भी जगह देखने को नहीं मिलता जो यहाँ पर मिलता है। धम्म का प्रचार प्रसार के साथ साथ यहाँ पूरे एरिया में आप देखोगे तो बहुत गरीब लोग आते जाते रहते हैं जिनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो भी है, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ पूरा करते हैं। मैं अगेन हमारे चेयरमैन RK श्रीवास्तव साहब एवं पंकज कुमार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपने इस फंक्शन में आके 4 चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच परमार जी, हमारे CWC प्रेसिडेंट। हम अभी जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर यहाँ उपस्थित हैं, उनका हम यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे। तो मिस्टर विजय नायक साहब जो है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है इस एरिया के, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे कैंप एक्टिविटीज को मिला है, पुलिस परमिशन एंड ऑल दिस। हम उनके द्वारा उनका यहाँ स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर मेश्राम सर का। और साथियों ये देखिए, ये मुंबई की पूरी टीम हमारी यहाँ पे आई है। मैडम यहाँ पे आई है सोनाली दत्ता जी मुंबई में। देन हमारे लाल साहब है जो H&W हॉस्पिटलिटी सेक्शन की वहाँ के इंचार्ज हैं। मिस्टर विवेक जिने जी जो हमारे रीजनल लाइसेंस ऑफिसर हैं वो यहाँ है। और ये फाइनेंस के मिस्टर केनेडी इज देयर। सो एवरीबडी, ऑल द सेक्शन, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ सब सेक्शंस ऑफ ONGC आर हियर। तो वी आर, एक बार उन सब के लिए जोरदार यहाँ से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। इसके बाद मैं मैडम शशि प्रसाद जी को मैं निवेदन करूँगा कि वो इस ओकेजन पे अपने ब्रीफ में थोड़े विचार व्यक्त करेंगे। नमस्कार, जय भीम। रिस्पेक्टेड CMD राजेश कुमार श्रीवास्तव सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफशोर पंकज कुमार सर, HRO Vijay Raj, my other colleagues and respected guests present here. A very good morning to everyone. जैसा अभी मिस्टर जागेश सोमकुमार जी ने बताया, परमार जी ने बताया और मिस्टर प्रसाद राव ने बताया, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं धाम चक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए। तो आप सभी का इस मौके पर स्वागत है। और जैसा कि अभी लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ पहले भी यहाँ पर आए हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है नागपुर में आने का, पहले कुछ बार विजिट किया है, ऑफ कोर्स फॉर द पर्सनल रीजंस। बट इस मौके पर ये जो आज का शुभ दिन है, जिसको कि मैं कहूँगी कि सम्राट अशोक उन्होंने जब विजय हासिल करी थी, उसके बाद में विजयदशमी, उनके 10 दिन जो ये कार्यक्रम मनाया गया था, विजयदशमी पे खत्म किया था और तब से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया यही दीक्षा भूमि में, और तब उस टाइम पर उनके साथ में लगभग 5 लाख लोगों ने उनके साथ में धर्म परिवर्तन किया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। तो ये दिन बुद्ध धर्म में बहुत पवित्र त्योहार की तरह मनाया जाता है, इसीलिए आज यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। हम शुक्रिया अदा करेंगे ONGC का और उसके साथ ही ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC का, कि जिनके कारण से इस तरीके के कार्यक्रम ONGC के सहयोग से ये लोग मना पाते हैं। और ये कार्यक्रम, जैसा कि अभी जागेश सोमकुमार जी ने बताया कि पिछले 20 सालों से ये कार्यक्रम यहाँ नागपुर में मनाया जा रहा है। और मैं एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि नॉट ओनली मुंबई का बट सभी जगह की ONGC की, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। ONGC पूरा सपोर्ट करती है इन एसोसिएशंस को, और नॉट ओनली इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि ONGC जैसे कि स्कॉलरशिप के लिए पूरा सहयोग करती है। ONGC डिफरेंट ट्रेनिंग्स में इस कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंस देती है, चाहे वो विद इन इंडिया ट्रेनिंग्स हो या अब्रॉड की हो।
सभी जगह सभी प्रकार के उसमें बराबर का सहयोग रहता है। इस समय जैसा सोम कुंवर जी ने कहा कि हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि सीएमडी सर को वापस भी जाना है। मैं एक छोटा सा और चीज़ ओएनजीसी के सहयोग के बारे में कहना चाहूँगी कि ओएनजीसी जो इस श्रेणी के लोग हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ SC/ST कम्युनिटी हैं, उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000 स्कॉलरशिप्स हर साल देती है और इसके लिए ओएनजीसी का हम सभी शुक्रगुजार हैं। हेलो, हाँ बोल। बाबा साहब के बारे में तब तो याच्यानं हम सभी लोग कालचं जानते live जो नाही copy हैं केलंय. जिस तरीके का कि आज लिटरेचर भी मुंबई ऑफिस के सहयोग से बांटा जा रहा है, वह एक बहुत ही पुण्य काम है। काय म्हटलं? बाबा साहब के बारे में अगर थोड़ा सा मैं कहूँ कि जिस तरीके लाईव्हचं को कार्ड उनको कॉपी नाही केलं लाईव्ह लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, रात्रि का? 9 लैंग्वेजेस वो बोल पाते ठीक थे। है, राहू दे उनके ते पास लाईन वर गेलाय ना 64 डिग्रीज में 64 सब्जेक्ट्स में उन्होंने डिग्रीज हासिल करी थी, मास्टर्स हासिल करी थी। तो हम सबको इस बात का बहुत ठीक है। फक्र होता है और जैसा उन्होंने हमेशा कहा था टू एजुकेट द सोसाइटी, सभी से अनुरोध है कि जो बाबा साहब का ये लक्ष्य था उसी को आगे बढ़ाना है और इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। बॉम्बे एसोसिएशन का खासकर शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मौका दिया यहाँ पर हमें एकत्रित होने का। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और साथ में सर भी यहाँ उपस्थित है, दोनों साथ में आए हैं। सर आपका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। मिस्टर अजय मेश्राम साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं जो काकीनाडा से, उनका भी हम यहाँ स्वागत करना चाहते हैं मेश्राम सर। साथियों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे ED/HRO श्री विजयराज सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस उपलक्ष्य में वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। नमस्कार। Respected Srivastav ji, CMD ONGC Group of Companies, Shri Pankaj Kumar ji, Director Offshore, Mrs. Shashi Prasad, CLO, Shri JJ Parmar, President CWC, All India SC/ST Employees Welfare Association, Shri Prasad Rao, General Secretary CWC, Shri Ashish Jain, Shri Rahul Tandon, श्री जागेश सोमकुंवर जी और पूरे SC/ST एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, जो वॉलंटियर्स यहाँ पे आए, मेरे जो रीजनल ऑफिस के सदस्य हैं जो यहाँ पे हैं और अन्य ONGC परिवार के मेरे साथ, नमस्कार। Once again, I consider it a blessing to be here today. ऐसा एक मौका इतने साल के बाद ONGC के सर्विस में मुझे मिला है इस पुण्य भूमि में आने के लिए, और इस इवेंट के साथ हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आई थिंक हमने पूरा निभाया। माई होल टीम फ्रॉम रीजनल ऑफिस, especially my medical team, has risen to the occasion. We faced some unique challenges this year. CSR के फंड को यूटिलाइज करते हुए ONGC के अपने खर्चे से ये पूरा इवेंट इस बार ऑर्गेनाइज हुआ। सर, इतने साल से ये इतने क्लोज संबंध के साथ शायद ये इवेंट कभी हुआ नहीं होगा। इस बार जितना coordination of all those involved, I should thank my finance team also. Mr. Kennedy is here somewhere. He is here. So a lot of cooperation from a lot of people, my MM team, my HR team, logistics team, CC, Sonali L team. इतने खुशी के साथ ये इवेंट में भाग ले रहे हैं। All those who wanted to come here to be part of this event, all those who wanted to volunteer, I happily agree कि आप भी आ जाओ, एक बार आके देख लो कि क्या होता है यहाँ। Along with me, I am also sure they will also be experiencing wonderful initiative that the association has been taking. पिछले 20 साल से अगर एक इवेंट को कंटिन्यूस करना तो वो एक आसान काम नहीं है।
So my compliments and best wishes to the association and all its efforts. I'm happy to be part of this and will continue to be a part of this for the years to come. Thank you very much. Sir, without your support, it would not be possible to arrange in such a grand manner this camp. Because जो पहले के जो कैंप्स थे और आज का आप देख रहे हो, यू कैन सी द डिफरेंस. तो हमारे विजय साहब का ऐसे बहुत बड़ा रोल है. हम पूरी हमारी नागपुर टीम, मुंबई टीम, हम सब की ओर से हम उनका यहाँ बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. और जैसे मैं भूल गया था, लॉजिस्टिक्स टीम भी हमारे साथ में है, एमएम टीम है, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस कैंप. सो everyone should be complimented for this. Their contribution, immense contribution, their encouragement, even guidance sometimes. Thank you very much once again. Now it's time, साथियों, to hear from our dignitaries. मैं पंकज सर को निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे डायरेक्टर ऑफशोर हैं, कि सर इस मौके पे सबसे पहले तो आपका पूरा एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने व्यस्तता के बावजूद आप यहाँ आए हैं. तो हम यहाँ बड़े आतुर हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड टू वेलकम यू पीपल, ऑल दी सीनियर डिग्निटरीज ऑफ ONGC. तो मैं पंकज सर को यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि सर इस ओकेजन पे आप अपने विचार व्यक्त करेंगे प्लीज. नमस्कार, सुप्रभात. Respected Srivastava ji, CMD ONGC Group of Companies, Vijayaraj ji, Shashi ma'am, Ashish, Tandon, President SCST Parmar ji, and my colleague in Ahmedabad, Mariana, sitting there, Rao Sahab, Shul Kumar ji, and all dear fellow ONGCians, and the local docs are those who are present here for this noble cause. Firstly, as Mr. Vijay just said, I think I'm feeling blessed to be here, especially on this day when Nagpur is in a different festive mode. Of course, the whole of the country is in a festive mode, but probably Nagpur is in a different festive mode. Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, who took Diksha here in Diksha Bhumi, and then who guided everybody to spread those feelings. My opinion, Buddha is not a term. These are feelings, these are perceptions, these are some values which are to be incorporated in ourselves. Dr. Bhimrao Ambedkar ji, he gave so many values to us, like equality, samanta, education, your kartavya parayanata, what you should do, be loyal to your work. How he could have acquired so many degrees? Because he was giving values to education. And probably he might have kept on reading and acquiring all those degrees, maybe because of spreading the thought, please spread the value of education in the society and give everybody a chance to acquire education in the society. That was his message, and that's what now we are supposed to do. That's our duty. He was spreading the message, do whatever you are supposed to do, but do it with full dedication, commitment, and with with the sense that I have to complete the assignment with full focus. And that's what we are supposed to do. Whatever is our assignment, we need to do it judiciously, we need to do it sincerely, we need to do it with full dedication. If government has given us a task of producing energy, we are supposed to do it with full dedication and justification. We have to justify that task. For sure, with doing that, we are supposed to take care of the society. We are a public sector company, and
when these companies were framed by Government of India, yes, one of the motto of Government of India was to uplift the society. And I always feel proud to be an ONGCian and saying that ONGC is a front runner in this. ONGC is the first company who spent such a huge amount on CSR activities. At the same time, this is the company who not only CSR from its own spends also contributes towards the society always. We have developed the nearby areas wherever we are working. All our work centers, we take care of it, and that we have demonstrated very sincerely in last 2 years of COVID pandemic. We always came forward not with the money only. हम लोग हमेशा सेवा में आगे आए और यही बाबा साहब ने कहा सेवा करो, सोसाइटी की सेवा करो। शायद इसीलिए आज हम यहाँ हैं। हमें बाबा साहब ने कहा समानता लाओ। समानता सोसाइटी में केवल धर्म, कास्ट यही नहीं है। आप ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास करें। किसी भी आदमी को कोई भी काम कर रहा है वो उसका कर्म है, उस कर्म करने से वो छोटा या बड़ा नहीं होता। ये समानता है। हर आदमी को आदमी समझे। ह्यूमैनिटी इज देयर। That's what Baba Sahib wanted, and that's what we should spread and we should take care of. शायद ONGC इसमें भी सबसे आगे। Reason being, we are the company wherein we are having people across the country, and people are not stationed it's not like the Andhra people are in Andhra only. They are in Bombay, they are in Dehradun, they are in Delhi, they are in all parts of the world, northeast, all parts of the world. ये समानता है। हम एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ये समानता है। एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, ये समानता है। शायद यही बाबा साहब कहना चाहते थे और इसी विचार को हमें और आगे ले जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीवास्तव जी से सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। श्रीवास्तव साहब के क्या विचार हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच सोम कुमार जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर and giving me the opportunity to be part of this function. And I would give compliments to Vijayaraj ji and his full team for arranging this so beautifully. मेरा भी सर ऊंचा हो गया। Thank you so very much. जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप लोग आए हैं तो हमारा सर और भी गौरवान्वित हो गया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है सर कि हमारे हम जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक माँ ने मुझे जन्म दिया वो तो सही है, बाकी एक मेरे दूसरी भी माँ है जो ONGC है, जो हमको हर चीज़ का ख्याल रखती है। ऐसे कोई कमी महसूस नहीं होने देती, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है, बच्चों का एजुकेशन है, बाकी जो भी फैसिलिटीज देती, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, उससे ज़्यादा ONGC हमको देती है। एक बार हमारी कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ONGC is such a great organization। और जहाँ पे श्रीवास्तव सर, पंकज सर, अपने विजयराज साहब हैं और बाकी जो डिग्नेटरीज हैं, ऐसे जैसे जो सपोर्टिव हमारा मैनेजमेंट अगर मिलता है तो हमें और भी इंस्पिरेशन मिलता है और भी एनकरेजमेंट मिलता है कि जितना हो सके, जैसे अभी सर ने कहा कि बाबा साहब का मिशन एक ही था, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो देयर इज नथिंग। तो बाबा साहब का ये संदेश दीक्षा भूमि से हमको सबको लेके जाना है कि वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, उसके बाद जात, धर्म और बाकी सब चीजें। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। नाउ साथियों, इसके पहले कि हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ONGC ग्रुप ऑफ कंपनी, जहाँ अपने विचार व्यक्त करेंगे। सर, हमने मराठी में एक बुक यहाँ पे हमने कंपाइल की है, जिसको हम कहेंगे मराठी में
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थ्यांचे प्रेरणास्थान। तो एजुकेशनल थॉट्स जो है बाबा साहब के, उनका स्टूडेंट लाइफ है, उसको हमने कंपाइल किया है, क्योंकि बाबा साहब का जो राइटिंग स्पीचेस है वो भारत भर में टोटल 22-23 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया हुआ है। और वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली ने उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करके सर्कुलेट किया है थ्रू आउट इंडिया। वो तमिल में अवेलेबल है, तेलुगु में है, बंगला में है, और भी लैंग्वेजेस में है। तो उसी से थोड़ा सार निकाल के हमने बच्चों के लिए क्या हो सकता है बेस्ट थॉट, कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करना है, समाज के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखना है, हमारे भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना है, इसमें ऐसे थॉट्स हमने कंपाइल करके ये रखे। तो उसका विमोचन सर हम करना चाहते हैं आपके कल। हमारे आज के मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड और बिलोव्ड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रीवास्तव सर को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सर इस मौके पे अपने आप विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद जागेश जी। मेरे सहयोगी मित्र ONGC बोर्ड के मेरे साथी श्री पंकज कुमार जी, ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सारे कार्यकर्ता, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर पाराशर, डॉक्टर पोर्तुगे, आई होप कि नाम मैंने सही लिया है, और ONGC के वो सारे हमारे साथी जो आज एक मैं इसको मुहिम ही बोलूँगा, मैं अपना श्रमदान देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ये मेरे लिए अति सौभाग्य और गर्व की बात है कि मुझे इस पावन दीक्षा भूमि में कदम रखने का सौभाग्य मिला है। मैं आना यहाँ पहले 2 साल पहले एक प्रोग्राम बना था, जिसको मुझे लास्ट मोमेंट पे किसी मीटिंग की वजह से कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद ये मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जागेश जी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ज़रूर आऊँगा, और इस बार भी कुछ ऐसे बादल बन रहे थे कि शायद आना मुश्किल होता, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि आधे दिन का उन्होंने मुझे समय दे दिया, और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, उस समय जाऊँगा। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ की हम बात करते हैं, उसको अगर मैं अपनी बाई तरफ देखता हूँ तो 2 महान व्यक्तित्व, महान विभूतियाँ, एग्जेम्पलरी पर्सनैलिटीज की फोटोज हैं यहाँ पर। मैं काशीपुरा चौक में हूँ। इसमें एक ONGC का कैंप सेलेस्टियल लेवल पे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंडिया से निकल करके एक नई दिशा, एक नए प्रकाश से छुआ, और उसके सानिध्य में जब बाबा साहब आए तो ये जो शिक्षाएं हैं, इनका मूलभूत आधार अगर हम किसी भी तरीके से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल नासमझ होते हुए भी समझने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ एक और एक शब्द में समाया हुआ है, जिसको कहते हैं मानवता। तो अब मानवता की परिभाषा आप अलग अलग तरीके से बोलें, चाहे इक्वालिटी बोलें, चाहे लिबर्टी बोलें, चाहे फ्रेटर्निटी बोलें, चाहे बंधुत्व बोलें, है ये है कि वो मानव की जो मूलभूत वैल्यूज हैं, उनको हम अपने जीवन में किस तरीके से आत्मसात करते हैं।
और जितना हम उनको आत्मसात अपने में अपने आप करेंगे, किसी के कहने से नहीं होता है, ये इंटरनल होता है और आदमी अपने आप उन वैल्यूओं को ग्रहण करता है। ये जरूर बात है कि किसी महान विभूति के सानिध्य में आने से शायद वो साक्षात्कार जल्दी होता है, और अदरवाइज आदमी जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, तब उनको इन सारे मूल्यों की परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आती है और वो उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। अब जहां तक बात है दीक्षा भूमि की, और ये भूमि नॉट बिकॉज कि अशोक ने यहाँ पे एक धर्म परिवर्तन किया था, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी बोलते हैं, चाहे वो विजयदशमी बोले या अशोक विजयदशमी बोले, कहानी घूम फिर के उसी पे आती है कि वो मानव मूल्यों की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने उसको अपने में समावेश करने की कोशिश की। और ये इस धरा का, ये इस धरती का भी गौरव है कि वो सारी घटनाएं इस भूमि पे हुई। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे किसी भी वजह से उपस्थित हों, जैसे मैं पहली बार आया हूँ, तो ये मेरे लिए बेसिकली एक सम्मान की और गौरव की बात है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। और आज अभी यहाँ से निकल के शायद जागेश जी मुझे वो स्तूप भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं वो स्तूप भी देखना चाहूँगा, क्योंकि वो भी अभी तक मैं चाहे सांची का हो या चाहे कहीं का हो गया नहीं हूँ, और उसकी भी संरचना और उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एक बड़ी डिफाइंड पद्धति से होता है और एक खास वजह से होता है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये संस्था, जिसको हम संस्था बोले, वो एनडीसी का सहयोग बोले, इसमें भी हम उन गरीब पिछड़े जिनको जिस तरीके की भी जरूरत होती है उसमें हम अपना जितना भी सहयोग कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, और ओएनजीसी कभी भी उन कार्यों से पीछे नहीं हटा है। और हमारे सहयोगी ने भी बोला है कि सारे जितने भी पीएसयूज होंगे या जितनी भी कंपनीज होंगी, उन सबसे ज्यादा ओएनजीसी इसमें आगे बढ़ करके अपना योगदान देता है और देता रहेगा। और ये सारे वो कार्य हैं जिसमें आपको करने में एक आत्मिक खुशी भी मिलती है। ये खाली करने के लिए नहीं होता है, और ये आप इससे जुड़ते हैं तो आपको इसमें एक अपनी आत्मिक एक खुशी भी महसूस होती है। तो ओएनजीसी ने जितना भी किया है मैं तो कहूँगा कम है, और इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को आगे ले जाने की। और इसमें जागेश सोमकुमार जी जो यहाँ इन्होंने बोला कि इसको 2002 से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसमें जितना भी हम सहयोग दे सकते हैं हमें देना चाहिए। और इसमें हमारे सारे साथी बिल्कुल बराबर के भागीदार हैं, वो इनके सारे सहयोग से ही होता है। और ये एक यूनिट है, मुंबई यहाँ कर रही है, इसी तरीके से बाकी संस्थाएं भी अपना अपना योगदान पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अपने वर्क सेंटर के आसपास और बाकी जगहों पर भी कर रही है। ये मेरा विश्वास है और करती रहेंगी। बाकी इन महान विभूतियों के बारे में कुछ भी बोलना, उसके आगे हम अपने को बहुत सुख महसूस करते हैं। और इनकी चाहे एजुकेशन हो, चाहे इनका एक नजरिया हो, जिसकी इन्होंने भारत के संविधान में उन मूल्यों का समावेश करके एक रास्ता दिखाने की, एक दिशा देने की कोशिश की है। और ये सब हम जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे संविधान का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूलभूत आधार है, जिनके ऊपर हमारा ये देश गौरव महसूस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और देश की प्रगति आज की समय में जितने भी ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस हो, आज ये रेजिलियंस जो भारत की है वो शायद इन्हीं वजहों से है, इन्हीं मूल्यों की वजह से, जिनको आज पूरी दुनिया समझ रही है और अपनाने की कोशिश कर रही है। तो बस आज आपके बीच में उपस्थित होकर के मुझे अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जागेश जी इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, और इस कार्य की सफलतापूर्वक संपन्न होने की मैं कामना करता हूँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और साथ ही उन डॉक्टर भाइयों का भी, डॉक्टर सहयोगियों का जो आज इस फ्री मेडिकल कैंप में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। एक टोकन ऑफ लव हमारी साइड से, हमारी टीम की ओर से, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC के मुंबई की ओर से
हम हमारे डिग्निटरीज को, जो हमारे गेस्ट है इस प्रोग्राम में, सबने कहा है कि हम लोग गेस्ट नहीं, वॉलंटियर्स है। बाकी सर हमारे लिए ये क्षण है कि जब हमारे आप गेस्ट है, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको वेलकम करने का। Mrs. Shashi Prasad Ma'am, GGM HR, Chief STC CLO, Shri J.J. Parmar Sir, President CWC, All India CAs, All India SC/ST Employee Welfare Association, Shri B. Prasad Rao Sir, General Secretary CWC, All India SC/ST Employee Welfare Association, Shri Ashish Jain Sir, GM Exploration, and Shri Rampal Tandon Sir, CGM, and prominent personalities from social field for sparing their valuable time and being available with us for this social endeavor. I also propose my gratitude for SC/ST Employee Welfare Association for continuously contributing their valuable efforts for this medical camp at Dikshagumi for the last 20 years and toiling hard to uplift and encourage compassion for various groups of society. I am happy to share that volunteers of SC/ST Employee Welfare Association have been working their level best to make this event a well-deserving platform to extend their help to the economically unprivileged section. I express my heartfelt thanks for the chairman of SC/ST Employee Welfare Association, Mr. Jagmesh Somkumar Sir, and Shri Satish Kadmi Sir, convener of the camp, and entire Nagpur team for taking efforts for making this event a grand success for all the needy ones. We would always be grateful towards Jagmesh Somkumar Sir for taking various initiatives for the society, particularly students' welfare programs, women empowerment, skill development, learning entrepreneurship development programs, and many more, all directed towards a progressive society and well-being of weaker sections. Thank you, sir, and thank you everyone for their contribution for this free multi-purpose medical camp at Nagpur. Thank you so much. Thank you, sir.